स्टार्ट करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। देखो, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है अ पर्सन, इसको अलग अलग चीज़ों से डिफाइन करते हैं। अ पर्सन हु इज़ केपेबल ऑफ वर्किंग, who is actively seeking working, who is actively seeking work, seeking work मतलब ढूंढना, ठीक है। who is actively seeking work, okay, he is searching for the work, and who does not get work। अगर ये तीन कंडीशन फॉलो होती है देन द पर्सन इज रिगार्डेड एज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इस वीडियो के बाद जो भी तुम्हारे डाउट्स है अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, कैपेबल ऑफ वर्किंग मतलब अ पर्सन हु इज़ कैपेबल ऑफ वर्किंग, एंड कैपेबिलिटी इज बेस्ट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ, in actually in India it is best defined in terms of age. So what is the factor of capability in terms of age? What is the age we take? It is 15 to 59 years. It is working age population of India. 15 से नीचे जो बच्चे हैं they are not considered as employed, they are not considered as employable, and above 59 or above 60 they are not considered as, they are not in working age. They are not in working age. They might be working but are not considered in the working age. I am again repeating, they are working, might be they are working, but they are not considered in employment. So person capable 15 to 59 years. So we have addressed this thing, capability of work. Who is actively seeking work? See, there is a person in the age, let's say, of 20 years. So he is in range of capability. If he is actively seeking work for 182 days in a year, then he is considered as a part of labor force. And if the person has not got any employment, then he is considered as unemployed, ठीक है। So let's make a pie chart here to understand it in better way. Let's say this is a working age, okay. Let me make it bigger. So let's say this is a population, okay. Inside that population, this is a working age, population. Inside that working age population, these are the persons who are seeking work. They are the people who are seeking work, actively seeking work. They are the part of labor force. And inside that, there is a person who is not employed in any kind of work and will be regarded as unemployed. So if I label it, this is total population, this is working age, this is our actively seeking population, actively seeking work, and this is our unemployed. So the term which is known as labor force participation ratio, it is equal to labor force upon my total population, and unemployment rate is equal to unemployed upon actively seeking work population. Okay, so that was the idea about who is actively seeking population, who is unemployed, who is working age, and what is the total population. So after that we come to the next idea, who is actually employed, who will be considered as an employee. कि कितने दिन आपने काम किया तो आप एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आ जाएंगे, ये किसे पता चलेगा. सो हु इज़ एम्प्लॉयड हियर.
So let's move on. So the data we use here is for the employment is like we have three types of employment which is calculated. Usual status. I am saying that for calculating who is employed, we calculate three types of data: usual status, weekly status, and daily status. Okay, so let's define one by one. सबसे पहले यूजुअल स्टेटस डिफाइन करते हैं. ओके, यूजुअल स्टेटस क्या होता है? यूजुअल स्टेटस मतलब यूजुअली और मेजरली आप कितने दिन एम्प्लॉयड हो वो बताता है आपका यूजुअल स्टेटस. यूजुअल स्टेटस में दो कैटेगरीज आती है. एक आता है प्रिंसिपल स्टेटस. प्रिंसिपल स्टेटस का मतलब होता है मेजरली आप कितने दिन एम्प्लॉयड हो. इफ़ अ पर्सन हैज़ बीन एबल टू फाइंड वर्क फॉर मोर देन okay, so principal status means that a person who is in labor force has to be in labor force. Okay, for any calculation he has to be in labor force में होना जरूरी है. अगर एक पर्सन लेबर फोर्स में है and if he is employed for majority of days he will be considered as his principal status will be considered as employed. जब तक वो एक लेबर फोर्स में रहा था, जब तक वो एक्टिवली सीकिंग वर्क में रहा था, जब तक वो लेबर फोर्स में रहा था, if that person is able to find the employment for majority of his days, then the person is considered as the usual status. His principal status will be as employed. Okay, so let's move on to the next one. So let's consider principal status, then subsidiary status. For subsidiary status, if a person is employed, if he is managed to get employment for at least 30 days, अगर 30 दिन भी उसको काम मिल गया तो he will be considered as subsidiary, usually unemployed but able to find employment for some days. ठीक है, मतलब कोई एक इंसान अगर उसका प्रिंसिपल स्टेटस क्या रहेगा, एम्प्लॉयड रहेगा. अगर वो आधे से ज़्यादा दिन काम कर लेता है उसका स्टेटस सब्सिडरी रहेगा, मतलब मेजरली अनएम्प्लॉयमेंट बट एबल टू फाइंड वर्क अगर वो 30 दिन काम कर लेता है. क्लियर? अब देखो इसको अगर अपन कंबाइन करते हैं तो जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा यूजुअल स्टेटस. यूजुअल स्टेटस इज इक्वल टू प्रिंसिपल स्टेटस प्लस सब्सिडरी स्टेटस. और जो अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट कि अनएम्प्लॉयड कौन है इसमें, अनएम्प्लॉयड कौन है, तो वो आएगा पूरा जो आपका लेबर फोर्स है उसमें से आप माइनस कर दो यूजुअल स्टेटस को, यानी कि इन दोनों को हटा देंगे तो अनएम्प्लॉयड कहलाएगा. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. कोई इंसान है, लेट्स अ पर्सन ए वाज वर्किंग, ही वाज एक्टिवली सीकिंग वर्क फॉर 240 डेज. 240 दिन में वो काम ढूंढ रहा है पूरे साल में. तो क्या वो लेबर फोर्स में है? इज ही इज़ इन लेबर फोर्स? येस, क्योंकि लेबर फोर्स की लिमिट क्या है? 182 डेज. ही इज़ इन लेबर फोर्स. तो सिंपल सर्वे वाले लोग उसके पास गए, उन्होंने पूछा कि क्या आप इतने दिन से काम कर रहे थे, आप क्या काम ढूंढ रहे थे? उसने बोला येस, मैं काम ढूंढ रहा था. उसने बोला कि 240 डेज से वो काम ढूंढ रहा है, तो उसमें हो गया जिसमें लेबर फोर्स में. आगे दूसरा सवाल, अगर आप लेबर फोर्स में हो तो क्या आप वर्किंग हो क्या आप नहीं हो? अगर उसने बोला मैं पिछले 100 दिन से काम कर रहा था, 100 डेज से, अगर वो 100 दिन से काम कर रहा था तो क्या उसका प्रिंसिपल स्टेटस आएगा? क्या नहीं, प्रिंसिपल स्टेटस, क्योंकि 240 डे का आधा कितना होता है? 120 दिन काम करता हो. अगर वो 120 दिन काम करता तो उसका प्रिंसिपल स्टेट एम्प्लॉयड कहलाता. बट वो 100 दिन काम नहीं कर रहा है, लेकिन वो 30 दिन से तो ज़्यादा काम कर रहा है, तो इसका जो स्टेटस है वो कैसा कहलाएगा? सब्सिडियरी स्टेटस. और गवर्नमेंट के डेटा में पर्सन एम्प्लॉयड कहलाएगा. द पर्सन इज एम्प्लॉयड क्योंकि वो 30 दिन से ज़्यादा काम कर रहा है. द पर्सन इज एम्प्लॉयड, 240 डेज काम कर और एक्टिवली सीकिंग वर्क था, 100 दिन काम किया, ही इज़ एम्प्लॉयड. वहीं पर लेट्स इमेजिन नेक्स्ट पर्सन, एक दूसरा पर्सन है बी, मान लो द पर्सन बी ही वॉज एक्टिवली सीकिंग वर्क फॉर अगेन लेट्स इमेजिन 240 डेज. Government asked him, were you working? He said, no, I was working only for
ओनली एंड ओनली फॉर 20 डेज। मैंने 20 दिन ही काम किया। 20 दिन ही काम किया तो क्या आपने सब्सिडरी स्टेटस की लिमिट पार करी? क्या आपने प्रिंसिपल स्टेटस की लिमिट पार करी? आपने नहीं करी, तो आप बिल्कुल अनएम्प्लॉयड हो। ही विल बी कंसिडर्ड एज अनएम्प्लॉयड। आई होप द प्रिंसिपल एंड द कंसेप्ट बिहाइंड यूजुअल स्टेटस इज क्लियर। अगर यूजुअल स्टेटस, इसको मेजोरिटी टाइम क्राइटेरिया भी कहा जाता है क्योंकि हम इसमें मेजोरिटी टाइम कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो यूजुअल स्टेटस प्रिंसिपल स्टेटस प्लस सब्सिडियरी स्टेटस होता है। फिर आता है CWS, जिसको अपन करंट वर्किंग स्टेटस भी कहते हैं, या सॉरी करंट वीकली स्टेटस भी कहते हैं। तो सेकेंड नंबर करंट वीकली स्टेटस, वीकली, ये डेटा वीकली होता है। इसमें क्या होता है, अ पर्सन इज इन लेबर फोर्स। पहला शर्त क्या है कि पर्सन जो है ना, पर्सन उसको लेबर फोर्स में रहना है। पर्सन इन लेबर फोर्स फॉर 1 वीक। 1 वीक मतलब एक हफ्ते के लिए, ये एक हफ्ते के लिए ही कैलकुलेट किया जाता है। ये एक हफ्ते ज़्यादा नहीं, एक हफ्ते है ना, फॉर 1 वीक, ठीक है। अब इसमें 2 सिचुएशन है। अगर वो इफ़ ही इज़ मैनेज टू गेट वर्क फॉर एटलीस्ट 1 आवर, उसको अगर 1 घंटे भी काम मिल गया ऑन एनी ऑफ द डे, अगर उसको 1 घंटे भी काम मिल गया ऑन एनी ऑफ द डे, देन ही विल बी कंसिडर्ड एज एम्प्लॉयड। क्या बोलेंगे, जो पर्सन है, जो इंसान है, जो आपके सामने बैठा है, ये एम्प्लॉयड है क्योंकि उसको एक हफ्ते में 1 दिन भी काम मिल चुका है। दूसरा है, अगर वो 1 दिन भी काम नहीं मिलता है, इफ इट डज नॉट गेट वर्क फॉर 1 आवर ऑल्सो, 1 घंटे भी अगर उसको काम नहीं मिलता है, तो उसका जो स्टेटस हो कैसा कहलाएगा, अनएम्प्लॉयड, ठीक है। फेयरली सिंपल। इसमें कोई मेजोरिटी टाइम क्राइटेरिया नहीं होता है, ठीक है। ये सेंसिटिव होता है टाइमिंग ऑफ सर्वे से। इस वर्ड का मतलब समझना जरूरी है। इट इज़ सेंसिटिव डाटा अकॉर्डिंग टू टाइमिंग ऑफ द डेटा। अकॉर्डिंग टू टाइमिंग मीन्स, देखो वीकली मतलब हर हफ्ते कैलकुलेट कर रहे हो आप। इफ़ लेट से अ पर्सन हु यूजुअली वर्क्स इन अ फायर क्रैकर इंडस्ट्री, वो फायर क्रैकर इंडस्ट्री में काम करता है, पूरे साल में 3 महीने होते हैं, वो पूरे साल काम ढूंढता है, बट उसका जो मेजर एम्प्लॉयमेंट का काम होता है वो जब तक दिवाली वगैरह का सीज़न होता है 2-3 महीने तब होता है। तो लेट से ये द पर्सन वर्क्स फॉर एग्जाम्पल द पर्सन वर्क्स फॉर अराउंड टू बी 150 डेज इन अ ईयर इन अ फायर क्रैकिंग इंडस्ट्री। 150 दिन वो काम करता है। अब जब वो काम नहीं कर रहा होता है, अगर तब ये सर्वे कंडक्ट किया जाएगा, द डे ही इज़ नॉट वर्किंग, तब ये अगर काम किया कर जाएगा, शायद वो अनएम्प्लॉयड कहलाएगा। गॉट डेट, क्योंकि ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को शो करता है। क्योंकि जब ये अकॉर्डिंग टू टाइमिंग का मतलब ये है कि जब एक्चुअल में काम करा गया आपका, जब ये सर्वे कंडक्ट किया गया, तब वो पर्सन है वो एम्प्लॉयड था कि नहीं था। तो हो सकता हो साल के किसी और दिन, सम अदर डे ही वॉज एम्प्लॉयड ऑन सम अदर डे। लेट से वो किसी और दिन एम्प्लॉयड था, सम अदर डे अगर एम्प्लॉयड था, लेकिन जब सर्वे कंडक्ट हुआ तब एम्प्लॉयड नहीं था, तो ही विल बी कंसिडर्ड एज अनएम्प्लॉयड। ओके, तो द फैक्ट इज दैट इट इज़ यूजुअली यूज फॉर सीजनल एम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट अगर मुझे मेज़र करना है तो मैं इस डेटा को मोस्टली यूज़ करता हूँ, ठीक है। रिमेंबर दिस। अब आते हैं लास्ट वन, जो कि है डेली, ठीक है। लेट्स कम फॉर द डेली, करंट डेली स्टेटस अप्रोच। So current daily status, ठीक है। डेली मीन्स इट इज़ मेजर डेली। ये गवर्नमेंट ऑफिशियली यूज़ नहीं करती है, बट इसको मेजर किया जाता है CMIE द्वारा, जिसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। आई राइट इट हियर। इसको यूज़ करती है CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ये इसको मेज़र करती है, ठीक है। इसको ऑफिशियल गवर्नमेंट मेंशन नहीं किया जाता है। इसको जो अपना PLFO है, जो वो PLFO यूज़ करता है, पहले वाले 2 वीकली CWS और यूजुअल स्टेटस, वो 2 यूज़ करता है PLFO। चलो इसको समझ लेते हैं। इसमें देखा जाता है कि इफ़ अ पर्सन, ठीक है, इसमें 2-3 सिचुएशन बन सकती है। इफ़ अ पर्सन, इसमें परसेंटेज टर्म होता है, थोड़ा समझना, ठीक है। अ पर्सन इंगेज्ड इन वर्क
engaged in work for more than 4 hours, he is employed, and he is employed 100%. If a person engaged in work 1 to 4 hours, then he is 50% employed, 50% other time 50% employed, or 15% employed. If he is engaged in work for less than 1 hour, he is अनएम्प्लॉयड. अनएम्प्लॉयड ही कहलाएगा क्योंकि 1 घंटे से कम काम किया. नाउ इसके बेसिस पर हम लोग नेट इंटेंसिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैलकुलेट करते हैं. सो इट मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ, इंटेंसिटी मतलब कितना अनएम्प्लॉयमेंट है. देखो एक क्वांटिटी में होता है, ये इंटेंसिटी में मेजर करता है. इंटेंसिटी, इट मेजर्स द इंटेंसिटी कि कितना इंटेंसिटी है. ठीक है, सो इंटेंसिटी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, कैसे कैलकुलेट होगा? मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. इसने काम किया, आवर्स ले लेते हैं. इसने काम किया 5 घंटे, 3 घंटे, 8 घंटे. थर्सडे को फ्री रहा, फ्राइडे को 6 घंटे, सैटरडे को फिर से उसने काम नहीं किया. ठीक है, अब देखो इसकी इंटेंसिटी क्या, 5 घंटे काम किया, 100% पूरा. इंटेंसिटी क्या रहेगी? इंटेंसिटी में क्या लिखेंगे अपन? 1. ये पूरे दिन काम किया. इसने 3 घंटे काम किया. 3 घंटे काम किया मतलब ऑब्वियसली आधा काम किया. ठीक है, 4 घंटे से कम काम किया तो अपन कितना गिनेंगे उसको? 50%. 50% मतलब 0.5. ठीक है, इसने काम किया 8 घंटे, मतलब वही 4 घंटे से ज़्यादा है, अगेन 1 गिनेंगे. 10 से काम नहीं किया, 0. 6 घंटे काम किया, ओके 1, 0, अगेन 0. कैलकुलेट कर लो, 1 2 3, 3.5. 3.5 मतलब ही इज़ एम्प्लॉयड फॉर द 70% ऑफ द डेज. अगर आप टोटल काउंट कर लोगे, टोटल 5 डेज है. ठीक है, 6 डेज है, और उसके हिसाब से 5 डेज. लेट से सैटरडे को छुट्टी थी तो 5 डेज़ के दिन एम्प्लॉयड है 0.5. 5 डेज़ के लिए एम्प्लॉयड है 5 डेज़, और ऊपर आ जाएगा आपका 3.5. इसको आप परसेंटेज में बदल लो, इट विल बी अराउंड टू बी 70%. तो 70% एम्प्लॉयड था और 30% डेज के लिए अनएम्प्लॉयड था. तो इस तरीके से करंट डेली स्टेटस निकाला जाता है. सो इट इज़ कैलकुलेट बाय सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी एंड इट इज़ नॉट यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, अब बात करते हैं इनका सर्वे कौन कंडक्ट करवाता है? एम्प्लॉयमेंट सर्वे. हु कंडक्ट्स द एम्प्लॉयमेंट सर्वे? लेट्स हैव लुक अबाउट दैट. कौन सी एजेंसी है, कौन करवाता है? ठीक है, तो इसको समझते थोड़ा सा, कौन रिस्पॉन्सिबल है. द मिनिस्ट्री विच इज़ रिस्पॉन्सिबल, फर्स्ट ऑफ ऑल ये किसके अंडर में होता है? तो इट इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कमिटी एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, MOSPI ये मिनिस्ट्री होती है. इसके 3 विंग्स होते हैं, आप विंग समझ सकते हो. ठीक है, पहले हो गया अपना NSO, नेशनल सैंपल सर्वे, NSC, नेशनल सैंपल कमीशन, और PI विंग. ठीक है, इनका रोल नहीं होता है, मेजर रोल NSO का होता है. NSO में 2 पार्ट होते हैं, एक NSSO होता है, एक CSO होता है. NSSO जो है वो सैंपल सर्वे कंडक्ट करता है. इनके पास बहुत सारे सैंपल सर्वेज होते हैं. देखो सर्वेज अलग होते हैं, सेंसस NSSO कंडक्ट नहीं करता है, इट इज़ द सर्वेज. इनके पास सर्वे होता है, इनके पास डेटा होता है. ठीक है, इस डेटा को यूजेबल इंफॉर्मेशन में बदलने का काम किया जाता है CSO द्वारा. ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यहाँ से किया जाता है. तो सिंपल सर्वे, तो सिंपल सर्वे जो होता है इसके बेसिस पे एक्सट्रापोलेशन किया जाता है कंप्लीट पॉपुलेशन का. एक्सट्रापोलेशन टू कंप्लीट पॉपुलेशन. ठीक है, पूरा पॉपुलेशन जो है वो मतलब उसके बेसिस पे पूरा ओपिनियन बनाया. एक्सट्रापोलेशन मतलब होता है ओपिनियन. ठीक है, इस सर्वे के हिसाब से ओपिनियन बनाया जाता है. CSO उस डेटा को प्रोसेस करता है. ठीक है, सर्वे में पूरा इंक्लूसिविटी होनी चाहिए, रिलीजन, कास्ट वगैरह इन सब की. ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर हुआ हमको. ठीक है, मेथड ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमने देख ली, यूजुअल स्टेटस वगैरह पूरा. आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर द रीजंस फॉर अनएम्प्लॉयमेंट. देखो रीजंस फॉर अनएम्प्लॉयमेंट और टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एक ही बात होती है. ठीक है, रीजंस फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, रीजंस फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, रीजंस फॉर
अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के क्या कारण है, रीजन्स और टाइप्स एक ही है। देखो टाइप्स होते हैं एक्चुअल में, टाइप्स अपन बोलते हैं, बट एक्चुअल में टाइप्स क्लासीफाई करना इतना आसान नहीं होता और अल्टीमेटली आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। तो उसको टाइप्स ना लेते हुए रीजन्स लो कि दीज आर द रीजन्स फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। व्हाट आर दीज? देयर इज स्ट्रक्चरल, देयर इज फ्रिक्शनल, देयर इज सीजनल, देयर इज साइक्लिकल। स्ट्रक्चरल, फ्रिक्शनल, सीजनल और साइक्लिकल, ठीक है। उसके अलावा और भी होते हैं अदर्स में अगर मैं बोलूँ, अदर रीजंस भी होते हैं, इंडिविजुअल हो सकते हैं, लाइक वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, एक अंडर अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, और एक डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट अदर में आ जाते हैं, ठीक है। यही टाइप्स होते हैं और यही मेजर रीजंस होते हैं। एक और क्लासिकल रीज़न होता है, वो अपन कभी और समझेंगे, बट अभी के लिए यही है, ठीक है। देखो स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट में क्या है, देयर इज सम स्ट्रक्चरल चेंज इन इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंज होता है। हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर क्या है, हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चरल बेस्ड है, हमारी इकोनॉमी इंडस्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रीज़ जो है वो कम है, या हमारी इकोनॉमी सर्विस सेक्टर डोमिनेट करता है, सर्विस सेक्टर इज डोमिनेटिंग, ठीक है। ये कुछ स्ट्रक्चर है हमारी इकोनॉमी का। अगर इस स्ट्रक्चर में चेंज होता है ना तो इसको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, ठीक है। लाइक कोई ऐसी पॉलिसी है जो एग्रीकल्चर को अफेक्ट करती है, इंडस्ट्री को अफेक्ट करती है, तो उसको अपन स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, दैट इट इज़ अ चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। इसमें भी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को अगर मैं डिटेल में समझाऊँ तो स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट मेजर 3 रीज़न से होता है, ठीक है। मेजर 3 रीज़न से होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के मेजर 3 रीज़न से, 3 बताऊँगा। पहला, देयर इज़ अ परमानेंट फॉल इन एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड अगर परमानेंटली फॉल हो जाएगी तो देयर विल बी एन इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जो सेल होगी, जो आउटपुट होगा वो उतना ज़्यादा सेल नहीं होगा कंपनीज़ का, उतनी ज़्यादा क्वांटिटी की डिमांड नहीं रहेगी, तो कंपनी इतनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगी, तो अल्टीमेटली वो अनएम्प्लॉयमेंट को राइज करेगी। तो परमानेंटली फॉल इन एग्रीगेट डिमांड मे बी वन ऑफ द रीज़न फॉर इट, ठीक है। दैट्स जस्ट एन रीजन्स, ठीक है, फॉर द स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। देन सेकेंड इज चेंजेस इन इंडस्ट्रियल फ्रेमवर्क। मैंने बोला स्ट्रक्चरल चेंजेस, इंडस्ट्री में चेंज हो गया, इंडस्ट्रियल फ्रेमवर्क में चेंज हो गया तो अनएम्प्लॉयमेंट राइज हो जाएगा। जैसे कि इंडस्ट्रियल फ्रेमवर्क, लेबर लॉस, यस लेबर लॉस से भी अनएम्प्लॉयमेंट होता है। कैसे होता है देखेंगे अभी, लेबर लॉस, ठीक है, ट्रेड यूनियन रेस्ट्रिक्शंस और मिनिमम वेजेस लॉस, ठीक है। ये 3 होते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में। और एक और रीज़न होता है इमोबिलिटी। अगर मैं इसको यहाँ से इसको रब करूँ तो एक और रीज़न होता है इमोबिलिटी। इमोबिलिटी इज ऑल्सो रिगार्डेड एज वन ऑफ द रीज़न फॉर द स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, इमोबिलिटी, ठीक है। एक तो ये हो गया, तीसरा जो होता है इमोबिलिटी। इमोबिलिटी कौन सी हो सकती है, इट मे बी एन ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी, इट मे बी अ इंडस्ट्रियल इमोबिलिटी, और इट मे बी ए जोग्राफिकल इमोबिलिटी। इसके एक एग्जांपल समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम एन एग्जांपल कि मान लो एक कंपनी है, टेक्सटाइल कंपनी है, मैं उस टेक्सटाइल कंपनी में जॉब करता हूँ, आई एम एम्प्लॉय देयर, ठीक है। कंपनी में कुछ लेबर लॉज आते हैं, मान लो लेट्स से एग्रीगेट डिमांड टेक्सटाइल की कम हो जाती है। एग्रीगेट डिमांड कम होने की वजह से आप बोल सकते हो कि आउटपुट भी उनका कम हो जाएगा, आउटपुट सेल्स कम हो जाएगी, तो अल्टीमेटली वो मुझे ले ऑफ कर देते हैं, आई एम अनएम्प्लॉयड, ठीक है। उन्होंने कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करे। कैसे स्ट्रक्चरल चेंजेस, उन्होंने लेट्स इमेजिन कि जो टेक्सटाइल कंपनी थी उसमें लेबर को उन्होंने रिप्लेस कर दिया, लेबर्स वर रिप्लेस्ड बाय ऑटोमेटिक मशीन्स हो गई, ठीक है। नाउ आई एम अ लेबर, मैं एक लेबर हूँ, आई एम अनस्किल्ड, करेंटली आई एम अनस्किल्ड, ठीक है।
अब अगर मुझे जॉब चाहिए, मेरे पास 3 रास्ते हैं। पहला तो ये कि आई मूव टू सम अदर सेक्टर, मैं सम अदर सेक्टर में मूव करूँ, जो कि मेरे लिए हो सकता है पॉसिबल ना हो, क्योंकि मैं अनस्किल्ड हूँ, मेरे पास उतनी स्किल्स ना हो, स्पेशली आज के टाइम पे एआई कंप्यूटर बेस्ड स्किल्स। तो इसको कहेंगे अपन ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी। या तो मैं इंडस्ट्री ही चेंज कर दूँ, इंडस्ट्री चेंज करके दूसरी में चले जाऊँ। अगर वो नहीं कर पा रहा हूँ मैं, तो भी इंडस्ट्रियल इमोबिलिटी। और तीसरा होता है आई वेंट टू सम अदर प्लेस, जहाँ पर इसकी डिमांड हो। सम अदर प्लेस, इट मे बी अ माइग्रेशन टू अ स्टेट, it may be a migration to a different country. If I am not being able to do that migration, I'll be in the category of geographical immobility. That's it, ये हो गया, उसको अपन जोग्राफिकल इमोबिलिटी कहेंगे। ठीक है, टेक्सटाइल कंपनी है तो उसी के एग्जांपल से आप इसको तीनों वर्ड को समझ लेते हो। तो ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के कुछ रीजन है कि इन सब के कारण से आपका स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। ठीक है, दूसरा था फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो रिलेटेड होता है इन्फॉर्मेशन से। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट समझते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट नाम से है ना, फ्रिक्शन मतलब देयर इज सम स्लाइट डिफरेंस। भाई क्या है कि लेट्स से मैं एक जॉब सीकर हूँ, जॉब सीकर नहीं हूँ, मैं जॉब करता हूँ, है ना। मैं लेट्स इमेजिन मैं कहीं जॉब करता हूँ, मैंने वो जॉब लीव कर दिया, हैड लीव दिस जॉब, मैंने इसको लीव कर दिया, आई हैव लीव दिस जॉब, मैं छोड़ दिया इसको। अब अगर मैंने इसको छोड़ दिया, आई एम सर्चिंग फॉर वर्क, जॉब एग्जिस्ट करती है मेरे लायक एक बेटर जॉब, इट एग्जिस्ट बट आई एम नॉट बीइंग एबल टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट दैट, उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिलती है, तो उसको अपन कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये टेम्परेरी पीरियड के लिए होता है, अनटिल अनलेस जब तक मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन ना मिल जाए। जब मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आई विल जॉइन इट डेफिनेटली। तो इसको कहते हैं फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट। जो आपके प्लेटफॉर्म्स लाइक लिंक्डइन हो गए, ठीक है, सच प्लेटफॉर्म्स आर प्रोवाइडिंग दिस, दे आर ब्रिजिंग सच गैप्स। तो इट इज़ वन ऑफ द रीजन इन अनएम्प्लॉयमेंट, इट इज़ वन ऑफ द टाइप फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट विच इज़ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आगे जाते हैं। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, देयर में बी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट पर्टिकुलर सीजन में आता है, मोर पॉपुलर इन एग्रीकल्चरल लेबर, एग्रीकल्चरल लेबर के लिए ज़्यादा होता है। ठीक है, और फायर क्रैकिंग इंडस्ट्री इंडिया में, ठीक है, सच टाइप्स ऑफ एग्जांपल यू कैन राइट इन सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, के सीजनली अनएम्प्लॉयड लोग रहते हैं। ठीक है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हो गए। इसका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का एक और रीज़न हो सकता है कि पीपल आर एंजॉइंग देयर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। जॉब छोड़ने के बाद में उनको कुछ अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं, तो उस वजह से भी वो नेक्स्ट जॉब जो है वो शायद टाइम से नहीं लेंगे। तो इसको सॉल्व करने के भी दो ही तरीके होते हैं कि बेटर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाए फ्रॉम द साइट ऑफ गवर्नमेंट, बेटर इन्फॉर्मेशन डिसिपेट हो, ठीक है, थ्रू द फॉर्म ऑफ न्यूज़पेपर्स, एडवर्टाइजमेंट्स एंड सम पोर्टल्स बनाने चाहिए जिन पे एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, और दोनों मतलब सप्लायर्स और डिमांड जो जॉब सीकर्स है वो सब एक प्लेटफॉर्म पे आ सके। तो सच टाइप ऑफ इनिशिएटिव इज नीडेड फॉर द ब्रिजिंग द गैप। एंड द नेक्स्ट वन इज अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट शुड बी रिमूव्ड, not removed but that should be reduced, removed नहीं बोलेंगे, reduced. So unemployment benefits must be reduced, or either better information should be given to reduce the frictional unemployment. Seasonal unemployment is one way, that's fairly simple. Seasonal unemployment cyclical. By understanding cyclical, I want to cyclical समझने से पहले अपन एक केन्सियन मॉडल ऑफ इकोनॉमी समझते हैं जिसमें बात करी गई है अनएम्प्लॉयमेंट की। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान समझना, इसमें है क्या ये चीज़ अनएम्प्लॉयमेंट समझने से पहले। देखो एक ग्राफ बनाते हैं अपन, लेट्स मेक अ ग्राफ। ओके, नहीं तो अभी इसको एंड करते हैं, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट टॉपिक, अदरवाइज द वीडियो विल बी लॉन्ग।